प्यारे विद्यार्थियों, प्यार भरी नमस्कार। मैं नरेश शर्मा, साइंस मास्टर, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल कुलार, जिला फाजिलका तो ਅੱਜ ਅਸੀਂ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਾਠ ਬਲ ਅਤੇ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਗਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। प्यारे विद्यार्थियों, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है कि बल की ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈਏ। ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਲ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬਲ। ਬਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰਸ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਧੱਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਖਿੱਚਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਸਤੂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਜੋ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਬਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਗਤੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਤੇ ਬਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗਤੀਮਾਨ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਬਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਸਤੂ ਰੁਕ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਤੇ ਬਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਬਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ खिंचना या धक्का मारना है। इट इज ए पुश और पुल। इनकी या तो तकना है, बल की है, या तो तकना है, किसी वस्तु को तकना या खिंचना, इनकी पुश और पुल। सो बल की है, बल एक अजिहा धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਤੀਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗਤੀਮਾਨ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਵਸਤੂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਅੱਗੇ। ਆ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਬਲ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਸਤੂ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਗਤੀਮਾਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਬਲ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ एक कागज है, मेरे को एक कागज है। अगर मैं इस कागज नू ऐ कर देना तो मैं की कर रहा, मैं इसके आकार विच की कर रहा, परिवर्तन कर रहा। सो इत्थे भी मैं की लगा रहा, इत्थे भी मैं बल लगा रहा। सो ऑन दी होर आप कह सकते हाँ कि बल की है, बल एक तरह का धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति नू, उसकी गति अवस्था नू, उसकी विराम अवस्था नू, उसके आकार नू बदल सकता है, बदल सकता है। इसमें ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, इसमें ਅਸੀਂ बल ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, इसमें ਅਸੀਂ फोर्स ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। सो
फोर्स इज अ पुश और पुल, एक धक्का या खिंचाव है जो विच टेंड्स टू चेंजेस द पोजीशन एंड शेप एक्सेट्रा ऑफ ए बॉडी। किसी वस्तु की जो पोजीशन है, उसकी गति वाली अवस्था है, जो उसकी जो विराम अवस्था है, जो उसका आकार है, उसनों बदलता है या बदलने की कोशिश करता है। इसनों ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਖਿਚਾਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦੀ ਜੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟੇ ਨੂੰ ਗੁੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਲ ਨੂੰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਬਲ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਲ ਜੋ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਲ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ, और दूसरा जो होता है वो होता है असंतुलित बल। इंग्लिश में भी इसमें संतुलित बल में कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स और इसमें असंतुलित बल में कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। सो मोटे तौर पर अगर आप देखिए तो जो बल है वो बल दो तरह का होता है, संतुलित बल या असंतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्स या अनबैलेंस्ड फोर्स। हुण प्रश्न ये पैदा होता है कि बैलेंस्ड फोर्स की होता है और अनबैलेंस्ड फोर्स की होता है। तुसी अपने दिमाग दे विच एक पिक्चर बनाओ कि दो बच्चे एक रस्सी नूं खिंच रहे हैं, मान लो दोनों तरफ, एक बच्चा एक साइड से खिंच रहा है, मान लो एक बच्चा राइट साइड से खिंच रहा है, एक बच्चा लेफ्ट साइड से खिंच रहा है, एक रस्सी बराबर बल लगा के। तो उस स्थिति में की होएगा, उस स्थिति में की होएगा कि वो बिल्कुल ना तो रस्सी राइट साइड से जाएगी, ना ही रस्सी लेफ्ट साइड से जाएगी। इनके दोनों बल आपस में की हो जाएंगे, दोनों बल आपस में की हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। उस स्थिति में की कहांगे कि वस्तु के उत्ते किहड़ा बल लग रहा है, वस्तु के उत्ते संतुलित बल लग रहा है। मेरी गल तुहानूं समझ आ गई होगी मेरे ख्याल नाल। या आपां एक होर उदाहरण नाल समझण की कोशिश करते हैं। मान लो तुहाडी क्लासरूम दे विच एक डेस्क है, उस डेस्क नूं एक बच्चा एक साइड ते खिंच रहा है और दूसरा बच्चा उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, कि उसके बिल्कुल उल्ट दिशा दे विच उन्ने ही बल दे नाल धक्का लगा रहा है। तो की होवेगा उस स्थिति दे विच जो डेस्क है वो ना लैफ्ट वाले पासे जाएगा ना राइट वाले पासे जाएगा। तो आप कह सकते हैं उस स्थिति दे विच जो नेट फोर्स है वो जीरो है, इनके आप कह सकते हैं कि वो केड़ा बल है, वो संतुलित बल है। तो तुहानूं मैं विखाउण की कोशिश करदा, तुसीं देख सकते हो इस डायग्राम दे विच कि दो बच्चे जिहड़े ने वो एक वस्तु नूं, एक बॉक्स नूं दोनों पासों बल लगा रहे हैं बराबर। तो आप ये कह सकते हैं इस स्थिति दे विच इस वस्तु के उत्ते जो है वो केड़ा बल लग रहा है, वो संतुलित बल है, दोनों बल बराबर ने, संतुलित बल आप इसनूं कह सकते हैं। होर उदाहरण लेने आप तुसीं देख सकते हो इत्थे भी जो तुहानूं पहला उदाहरण दी थी कि जो दो व्यक्ति ने वो एक रस्सी नूं एक व्यक्ति अपनी तरफ खिंच रहा है, एक व्यक्ति अपनी तरफ खिंच रहा है। तो इस स्थिति दे विच की होएगा, जी रस्सी है वो किधर ही नहीं जाएगी और की होएगा रस्सी बिल्कुल विराम अवस्था दे विच आ जाएगी। बल लग रहा है, बल तो हले भी लग, दोनों लगा रहे हैं बल, बट दोनों बल आपस में की ने बराबर ने। तो आप ये कह सकते हैं कि इत्थे एक बल है, ये संतुलित बल है, ये बल केड़ा है, दिस इज द बैलेंस्ड फोर्स, ये बैलेंस्ड फोर्स है अपने को। ऑन दी अदर हैंड साइड अगर आप गल करिए असंतुलित बल की, क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्स की गल करिए, उस स्थिति विच की होएगा जदों हुण आप यही उदाहरण दोबारा तो लेंदे हां, जदों एक व्यक्ति ज्यादा बल लगाएगा और एक व्यक्ति घट बल लगाएगा तो एक रस्सी एक पासे चल पेगी, क्योंकि एक पासे मूव कर देगी।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੱਸਾ ਕਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਰੋਪ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਆ ਰੱਸਾ ਕਸ਼ੀ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਪਰੀਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਲ ਹੈ? ਉਹ ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਬਲ ਹੈ, ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗਤੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਲ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਜਦੋਂ ਬਲ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗੂਗਾ, ਦੋ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਬਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਨੈਟ ਫੋਰਸ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ। ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਲ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਬਲ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਲ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਹੋ। ਚੁੰਬਕੀ ਬਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੰਬਕ ਹੈ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚੁੰਬਕੀ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਿਜਲਈ ਬਲ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੈਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁੱਕੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਗੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਉਸ ਵੱਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਬਿਜਲਈ ਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਤਵੀ ਬਲ। ਸੋ ਗੁਰਤਵੀ ਬਲ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸਿਸ। ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸਿਸ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੌਕ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਲ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਰਤਵੀ ਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਤਵੀ ਬਲ ਬਾਰੇ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਬਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ F ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। F ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ F ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ F ਵੱਡੇ F ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਛੋਟੇ F ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। F ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜੋ SI ਇਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲ ਦੀ ਜੋ SI ਇਕਾਈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਲ ਦੀ SI ਇਕਾਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਟਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਟਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਟਨ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਨਾਲ N ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ N ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਦੀ SI ਇਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਨਿਊਟਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ SI ਇਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ CGS ਇਕਾਈ ਹੈ, CGS ਇਕਾਈ होती है डाइन, DYNE डाइन। सो दो इसके जो है इकाइयां होंदियां ने, एक इसकी SI मात्रक होंदा है, यूनिट होंदा है, वो होंदा है न्यूटन, और जो CGS जो इकाई होंदी है वो होंदी है डाइन। ये कित्थों आया न्यूटन डाइन? ये आपां चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਾਰੇ ਮੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢੀਏ ਜਾਂ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਗਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੈ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵੇਗ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮੋਮੈਂਟਮ।
दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, संवेग या मोमेंटम। संवेग की होता है, मोमेंटम की होता है, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਲਦੀ ਹੈ, ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਤੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵੇਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ, ਕਿਸੇ ਗਤੀਮਾਨ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਤੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੰਵੇਗ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿ ਜੋ ਵਸਤੂ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸੰਵੇਗ ਹੋਏਗਾ, रुकी हुई वस्तु का संवेग नहीं होएगा। अगर मैं गल करा इस किताब की और मैं पूछा तुहानू कि इसका संवेग हुण कितना है इस समय, क्योंकि ये वस्तु रुकी हुई है, ये वस्तु चल नहीं रही है, इसलिए इस वस्तु का जो संवेग है एट प्रेजेंट मौके पर इसका संवेग कितना है, इसका संवेग 0 है। पर अगर ये वस्तु चल रही होएगी, मूव कर रही होएगी, तो इसका वस्तु का संवेग कोई ना कोई संवेग की इसकी वैल्यू होएगी। सिमिलरली इसी तरीके के नाल जो रुकी हुई कार है, अगर एक कार बाहर खड़ी है, रुकी हुई है, तो आप कह सकते हैं कि उस रुकी हुई कार का जो संवेग है वो 0 है। पर जो कार चलेगी, मूव करेगी, गति में आएगी, तो आप कह सकते हैं कि उसने संवेग प्राप्त कर लिया है, उसको संवेग है। सो संवेग की है, संवेग किसी वस्तु के विच गति की मात्रा है। इसनों असीं गणितक तौर के उत्ते एक फॉर्मूले दे नाल आपां रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपां लिख सकते हैं संवेग बराबर है पुंज गुणा वेग। सो संवेग जो है, संवेग दो चीजों का गुणनफल है। संवेग दो चीजों का गुणनफल है। किहड़ी किहड़ी चीज का? पुंज, उस वस्तु का पुंज कितना है और उस वस्तु का वेग कितना है। वेग आप लिख सकते हैं इसनों, संवेग को हमेशा पी शब्द के नाल आप डिनोट करते हैं। पी बराबर है, और पुंज का मतलब पुंज को ਅਸੀਂ m ਦੇ ਨਾਲ डिनोट करते हैं, m, और वेग को ਅਸੀਂ हमेशा v ਨਾਲ डिनोट करते हैं, तो v। सो अपने को संवेग का एक फॉर्मूला बन गया, p बराबर है m गुणा v। यानी कि संवेग जो है, किसी वस्तु का जो संवेग है वो बेसिकली दो चीजों पर डिपेंड करता है, दो चीजों पर निर्भर करता है। उस वस्तु का पुंज कितना है और उस वस्तु का वेग कितना है। जिन्ना वस्तु का पुंज ज्यादा होएगा उसका संवेग भी की होएगा, ज्यादा होएगा। जिस वस्तु का वेग ज्यादा होएगा तो उसका संवेग भी ज्यादा, मतलब दो चीजों के उत्ते निर्भर करता है। दो चीजों का एक मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, गुणनफल है। किसका संवेग जो है वो दो राशियों का गुणनफल है। केड़ी केड़ी राशियां? पुंज है कि मास की m, और वेग की वेलोसिटी की v। सो एक फॉर्मूला तुसीं याद रखना है, इहदे उत्ते आपां नूं संख्यात्मक प्रश्न भी पेपर विच पूछे जा सकते हैं। p बराबर है m गुणा v। सो मैं तुहानूं समझाने की कोशिश और आगे समझाने की कोशिश करदा। आपां इस तो पहले इसकी इकाई देख लीए। हुणे आपां की फॉर्मूला किता बच्चों? हुणे आपां एक फॉर्मूला किता है, संवेग बराबर है m v। ये तुसीं फॉर्मूला याद रखना है, कॉपी ते नोट कर लेना है, क्योंकि इहदे उत्ते संख्यात्मक प्रश्न आपां नूं पेपर विच पूछे जा सकते हैं। हुण इत्थे आपां इसकी इकाई की गल करिए, इहनूं मापांगे किवें? इकाई की है, इसकी इकाई की है? वो इकाइयां नूं दो तरीके नाल लिखदे हां आपां, SI ते CGS। पहला आपां SI यूनिट की गल करिए। इसकी मास, पुंज नूं असीं SI इकाई दे विच किलोग्राम च मापदे हां। सो ये बन गया किलोग्राम। और वेलोसिटी यानी वेग दे जो SI इकाई होती है वो होती है मीटर प्रति सेकंड। सो आप कह सकते हैं संवेग की जो इकाई है वो है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। यानी कि जो आप संवेग तो इकाई का भाव की होता है, जो आप किसी चीज़ को मापना होता है तो आपको इकाई की लोड़ पैंदी है। उदाहरण के तौर पर तुसीं बाजार दे विच चीनी लेने वास्ते गए, खंड लेने वास्ते गए, तो तुहानूं दुकानदार को जाके कहना पड़ेगा कि मैनूं 5 किलोग्राम चीनी दे दो। तो किलोग्राम, जो किलोग्राम है वो उसकी इकाई है। इसी तरीके के नाल मान लो आप बाजार दे विच कोई कपड़ा लैन जाते हैं, कपड़ा लैन गए तो उत्थे आप उसनूं बोलते कि मैनूं 10 मीटर कपड़ा चाहिए है, तो मीटर जो है वो उसकी इकाई है। इसी तरीके के नाल मान लो तुसीं आप कहते हैं कि मेरा घर दिल्ली तो 300 किलोमीटर दूर है, सो किलोमीटर जो है इकाई है।
ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸੰਵੇਗ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਐਸਆਈ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੀਜੀਐਸ ਇਕਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੀਜੀਐਸ ਇਕਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ जाएगा, जो पुंज है वो ग्राम च मापा जाता है, सो बन जाएगा ग्राम, और जो वेलोसिटी है वेग है वो बनता है सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सो ये बन जाएगा ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये इसकी एसआई इकाई है। सो ये अपना संवेग जो है संवेग की एसआई इकाई। सो संवेग की दो चीज़ां तुसीं याद करनियां ने। पहली गल तुसीं संवेग का फॉर्मूला लर्न करना है। फॉर्मूला होता है m गुणा v। हुंदा की है संवेग, संवेग जो है वो किसी वस्तु दे विच जो गति की मात्रा है उसनू मेजर करने का एक तरीका होता है, प्रदर्शित करने का तरीका होता है। सो इसका फॉर्मूला होता है m इंटू वी, और इसकी इकाई जो है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ਆਪਾਂ थोड़ा इसनू होर डिटेल दे विच समझने की कोशिश करते हैं, संवेग नू होर डिटेल दे विच ਆਪਾਂ समझने की कोशिश करते हैं। ਆਪਾਂ एक संख्यात्मक प्रश्न हल करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न आ गया अपने को, एक मान लो एक प्रश्न है कि अगर एक कार है मेरे को, सपोज तुसी अपनी कॉपी ते नोट कर सकते हो, एक कार है मेरे को, मान लो उस कार का जो भार है वो कितना है 600 किलोग्राम। मान लो उस कार का जो वजन है, जो पुंज है उसका जो पुंज है वो कितना है 600 किलोग्राम है। और आप ये मान लेते हैं कि वो कार 5 मीटर प्रति सेकंड के नाल चल रही है, उसका वेग कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड, ये उसका वेग है। और प्रश्न है कि तुहानू उसका की करना है, उसका संवेग पता करना है, संवेग कितना है। हुण आपको पता है संवेग का फॉर्मूला की होता है, संवेग P बराबर है की फॉर्मूला होता है प्यारे विद्यार्थियों, इट इज m गुणा v। m गुणा v होता है। हुण m कितना अपने को, m अपने को है 600, और v कितना अपने को है, v है अपने को 5, तो क्या बढ़ गया 600 गुणा 5, तो ये बढ़ गया 3000, और यूनिट की लगाओगे आप किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। सो आंसर क्या आएगा अपने को, उस कार में विच जो संवेग है वो कितना है 3000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। अगर एक क्वेश्चन ऐ होता कि एक वस्तु, एक कार जी है 600 किलोग्राम की है और वो रुकी हुई है, खड़ी हुई है, चल नहीं रही है, तो उस स्थिति दे विच संवेग कितना होएगा। अगर आप उनकी गल करिए, अगर कार चल नहीं रही है, मूव नहीं कर रही है, रुकी हुई है, तो उस स्थिति दे विच संवेग कितना होएगा, तो वही आप करांगे m कितना अपने को 600 किलोग्राम, और v कितना है, क्योंकि वस्तु चल नहीं रही है, कार चल नहीं रही है, ता v कितना है, v 0 है। और आपको पता है p का फार्मूला की सीगा m गुणा v, यानी कि 600 गुणा 0, तो 600 गुणा 0 इज 0। सो इसका मतलब ये होया प्यारे विद्यार्थियों कि तुसी जदों भी संवेग की गल करनी है तो संवेग का मतलब ही ये है कि वस्तु जो है वो चलती होनी चाहिए है, मूवेबल होनी चाहिए है, मोशन दे विच होनी चाहिए है, गति दे विच होनी चाहिए है। अगर वस्तु गति दे विच नहीं है तो उसका संवेग 0 है। ये तुम्हें याद रखना है। आप एक दो उदाहरण होर समझने की कोशिश करते हैं कि संवेग को होर डिटेल समझने की कोशिश करते हैं कि संवेग होंदा की है। एक आप उदाहरण होर लेते हैं, तुसी अपनी कॉपी के उत्ते मेरे नाम नाल अगर बना सकते हो तो अच्छा रहेगा। मान लो मेरे को दो कारां ने, मान लो मेरे को दो केसेस ने। मान लो ये मेरे को कार ए है और एक कार हो रहा है मेरे को, मान लो दिस इज कार बी। दो कारां ने मेरे को, दोनों कारां दा मन लेने कि पुंज बराबर है, दोनों का पुंज की है, पुंज बराबर है, दोनों का पुंज बराबर है। प्रश्न ये है मेरे को, दो कारां ने ए और बी, दोनों का पुंज बराबर है, दोनों का पुंज की है बराबर है। ए कार का वेग बी नालों ज्यादा है। मान लो ए कार का जो वेग है वो बी नालों ज्यादा है, मतलब एक जी कार है वो बी नालों तेज चल रही है। सो मैं क्वेश्चन को रिपीट करदा दोबारा तो तुसी आराम नाल ध्यान नाल मेरी क्वेश्चन को सुनो। क्वेश्चन ये है कि मेरे को दो कारां ने,
एक कार ए है, एक कार बी है। कार ए और बी दोनों का पुंज बराबर है, एक समान है, परंतु कार ए बी नालों ज्यादा तेज चल रही है, उसका वेग ज्यादा है ए दा, ਤਾਂ दसो किस दा संवेग ज्यादा होगा। सो तुसी हुण अपना दिमाग लगा सकते हो, सोचने की कोशिश करो। मैं एक बार जो तक तुसी सोचते हो मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूंगा कि बॉडी जी ए है, कार जी ए कार है और बी कार है, उन्होंने पुंज बराबर है, वेग ए दा ज्यादा है, बी दा घट है, तो संवेग किसका ज्यादा होगा। हुण आपां इसनूं हल करने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल नाल तुसी हल कर लिया होगा, तुहानूं तुसी आंसर कर लिया होगा। आपां नूं पता है पी दा फार्मूला की सीगा, एम गुणा वी, एम गुणा वी। हुण एम दोनों का बराबर है, एम तो दोनों का बराबर है पुंज, वी ए दा ज्यादा है, इसका मतलब की होएगा, पक्की गल है ए कार का संवेग जो है वो की होएगा, बी कार नालों ज्यादा होगा। सो अगर दोनों का पुंज बराबर होए तो जिसका वेग ज्यादा है उसका संवेग भी की होएगा, ज्यादा होगा। या इस क्वेश्चन थोड़ा उल्टा करके लिखते हैं आप। हुण इस क्वेश्चन थोड़ा उल्टा करते हैं आप, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बदल देते हैं आप। हुण आप ये कहने कि दोनों कारां दा वेग बराबर है, दोनों कारां दा वेग बराबर है, मान लो दोनों कारां दा वेग बराबर है, और ए कार दा बी कार दा पुंज ए नालों ज्यादा है, मान लो बी कार दा पुंज ए नालों ज्यादा है। हुण किस दा संवेग ज्यादा होएगा। आई रिपीट माई क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन रिपीट करता। पिछले केस विच की सीगा, दोनों का पुंज बराबर सी, वेग अलग अलग सी। हुण इस स्थिति दे विच दोनों का वेग बराबर है, मान लो दोनों कारां इक्को चाल नाल चलदियां पियां, इक्को वेग नाल चलदियां पियां ने, उन्हां दी स्पीड इक्को जिन्नी है, बट बी कार दा पुंज जिहड़ा है वो ए नालों ज्यादा है, तो किस दा संवेग ज्यादा होएगा। सो आपको पता है पी किस बराबर सी, पी दा फार्मूला की सी, एम गुणा वी। हुण इत्थे वी दोनों का बराबर है, तो नैचुरली जी गल है जिसका पुंज ज्यादा होगा उसका संवेग भी ज्यादा होगा। तो इस स्थिति दे विच किसका पुंज ज्यादा सी, बी दा पुंज ज्यादा सी, ए दा पुंज घट सी, तो आप कह सकते हैं कि बी कार का जो मोमेंटम है, बी कार का जो संवेग है वो ए दे मुकाबले की होगा, ज्यादा होगा। सो इस तरह के प्रश्न तुहानूं पेपर दे विच पूछे जा सकते हैं, समझने की लोड़ है सिर्फ, और बहुत ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। समझोगे तो तुम ईजिली हर तरह का क्वेश्चन जो वो कर सकते हो। आप एक प्रश्न होर करने की कोशिश करते हैं। सो ये प्रश्न तो है, इस बार तुम अपने आप ट्राई करो, थोड़े कॉपी पेन होंगे, जस्ट ट्राई योरसेल्फ, फिर आप उस तो बाद इन्हों चेक करके वेखांगे तुम सही किया कि नहीं किया। थोड़ा जिहा मुश्किल करांगे आप इस बार। सो आप लवांगे, एक बॉल है, एक गेंद है, क्वेश्चन है, प्रश्न की है अपने को, एक गेंद जिस दा भार 500 ग्राम है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल नाल गति कर रही है, संवेग ज्ञात करो, संवेग ज्ञात करो। सो आई रिपीट माई क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं जी। मेरे को एक बॉल है, उस बॉल का भार जो है वो 500 ग्राम है, मतलब कि उसका मास जो है वो 500 ग्राम है। जैसा पुंज, आपको पार ना पुंज शब्द इस्तेमाल करने ज्यादा बेटर है। पुंज 500 ग्राम है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग नाल चल रही है, तो संवेग ज्ञात करो। आप संवेग पता करने की कोशिश करांगे। सो हुण आपां नूं पता है इत्थे एम दिता है, आपां नूं एम कितना दिता आपां नूं 500 ग्राम, और वी दिता आपां नूं 36 किलोमीटर प्रति घंटा। हुण एक गल ध्यान रखना तुसीं सारे विद्यार्थियों ने कि तुसीं एक यूनिट नूं फॉलो करना है।
ग्राम जो आवे तो उसको कोशिश करिया करो कि किलोग्राम च कन्वर्ट कर लो। एक यूनिट होती, एक सिस्टम होता है, जे आप मास ਨੂੰ या तो इसको ग्राम च रखिए, ਇਹਨੂੰ सेंटीमीटर प्रति सेकंड च ले जाइए, या इसको किलोग्राम च कन्वर्ट करके इसको मीटर प्रति सेकंड च कन्वर्ट करिए। सो अपना इसको अपनो ग्राम ਨੂੰ किलोग्राम च बदलना पड़ेगा। सो आपको पता है 500 ग्राम का मतलब है 500 बटा 1000 किलोग्राम, कि ये बन गया 1/2, आधा किलो, इनकी बॉल जो है वो आधा किलो दी है, हाफ किलो दी। ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 36 ਇਸ ਨੂੰ 5/18 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 5/18 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ, ਸੌਰੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 10 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚ ਬਦਲਿਆ, किलोमीटर प्रति घंटा ਨੂੰ मीटर पर सेकंड ਚ ਬਦਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ p ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗਾ। p ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ, m ਗੁਣਾ v। ਸੋ m ਕਿੰਨਾ ਸੀ 1/2, v ਕਿੰਨਾ ਹੈ 10, तो आंसर आ जाएगा 5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। सो आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सो ये अपने को इस तरह के संख्यात्मक प्रश्न जो आप कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई इन्ना औखा नहीं है। सो एक बार आप रीकैप कर लिए आप किता कि हुण तो लेके शुरू तो लेके हुण तक आप की कीता है लैक्चर दे विच। सब तो पहला असीं गल कीती बल बारे, बल की हुंदा है, बल तुहानूं दस दित्ता मैं की हुंदा है। बल एक तक्का या खिंचाव है। बल दो तरह का हुंदा है बेसिकली, अगर आप मोटे तौर पर वेखिए संतुलित बल और असंतुलित बल। आप संतुलित बल दी कुछ उदाहरण कीतियां, आप असंतुलित बल दी कुछ उदाहरण कीतियां। इस तो इलावा कुछ बलों बारे आप होर वेखे भी किहड़े-किहड़े बल हुंदे ने। फिर आप संवेग की गल की, आप संवेग का फॉर्मूला वेख्या की होंदा है। संवेग का फॉर्मूला होंदा है P बराबर है m गुणा v। आप बल की इकाई वेखी की होंदी है, बल की इकाई न्यूटन होंदी है, SI इकाई, CGS इकाई डाइन होंदी है। फिर आप गल की मोमेंटम संवेग की इकाई की गल की, संवेग की इकाई SI इकाई होंदी है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, और CGS इकाई होंदी है सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। फिर आप कुछ संख्यात्मक प्रश्न जो है वो उत्ते किते, कुछ आप वैसे गल्लां कीतियां कि संवेग कोई चीज़ मूव करेगी तो उसका संवेग होएगा, या जो चीज़ रुकी हुई है उसका संवेग कितना होएगा, 0 होएगा। सो ये आप हुण तुहाडा होमवर्क ये है, तुहाडा होमवर्क ये है, तुहाडा पहला होमवर्क ये है कि तुसीं अपने आले दुआले दे विचों देखो, जो विज्ञान हुंदा है वो साडे आले दुआले ही हुंदा है। विज्ञान पढ़न वास्ते आपां नूं कोई साइंस की लैबोरेटरी दे विच जाण दी लोड़ नहीं हुंदी। अपने आस पास, अपने घर दे विच, अपने किचन दे विच हर थां ते साइंस आपां नूं मिल जाती है। सो तुसीं अज ये तुहाडा होमवर्क है, तुसीं ये अपने घर दे विच देखना कि तुसीं किहड़ी-किहड़ी स्थितियां दे विच बल लगाने हो, तुसीं किहड़ी-किहड़ी स्थितियां दे विच बल लगाउने हो। जिवें उदाहरण के तौर पर तुहानूं दस देना, जदों तुसीं गेट खोलदे हो तो तुसीं बल लगा रहे हो, जदों तुसीं गेट बंद कर रहे हो तुसीं बल लगा रहे हो, तुहाडी मदर जदों खाना बना रही है, आटा गुन रहे हैं तो उदों भी वो की कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। सो ये कुछ उदाहरण है। सो तुसीं अपनी कॉपी दे विच इन्नियां जिन्नियां भी उदाहरण हो उसको तुसीं नोट करनियां ने, बल दियां, बल किहड़े उदाहरण ने। और फिर कुछ तुसीं संख्यात्मक प्रश्न जिहड़े ने वो बल के उत्ते संख्यात्मक प्रश्न जिहड़ा है वो सॉल्व करने की कोशिश करनी है। कुछ अपने लैवल पे जो है किताब दे विच, या जो तुहानूं किताबां दे विच जो क्वेश्चनस ने पिछे बुक दे विच उन्हां नूं हल करने की कोशिश करनी है। मैं उम्मीद करदा तुहानूं सारिआं नूं अज दा टॉपिक बहुत पसंद आया होगा, और तुसीं संवेग दे बारे और बल दे बारे